मैरन मत वेद हथियार। भौ खला अगन तपताओ, भांडा भाओ अमृत तित ढाल। घड़िया शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। चवर छतर तखत दे मालक, दो जहानां दे वाली, कुल कैनाथ दे सांझे रहवर। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आओ विचारां दी रंबता तो पहला गुरु पातशाह वालों बख्शी हुई फतेह प्रवान करिए। प्रवानो जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन जपजी साहिब दी 38ਵੀਂ पौड़ी जिहदी आपां विचार करनी है। 37 पौड़ियां दी एक उप शिंगार पौड़ी है। उप शिंगार मैं इस करके कह रहा हाँ क्योंकि पहले पौड़ियां दे अंदर समझाया है जिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। इस हुण पौड़ी दे अंदर समझाया जाएगा भी घड़ना किवें। इन्नी गल ते आपां समझ ली कि मन नूं घड़ना है, सुरत नूं घड़ना है, सोच शक्ति नूं घड़ना है, विचार शक्ति नूं घड़ना है, पर घड़ना किवें। इस पावन शब्द के अंदर हुण गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह समझा रहे हैं। घड़िए शब्द सच्ची टकसाल। टकसाल दे अंदर करंसी घड़ी जाती है, माया पैसे घड़े जाते हैं, पर शब्द की टकसाल विच मन नूं घड़िया जाता है। मन हुण धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह समझा रहे ने दुकान केड़ी है, सुनियारा केड़ा है, हथियार केड़ा है, अग केड़ी है जिदे अंदर इस मन नूं घड़िया जाना है। ते गुरु धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कह रहे ने जत पहारा। पहारा किया जाता है दुकान नूं। बड़े ध्यान दे नाल जे समझोगे विचार नूं तां तुहानूं समझ आएगी कल्ली कल्ली गल। पहाड़ा किया जाता है दुकान नूं जिथे सुनियारा बैठा हुंदा दुकान ते। सुनियारा दुकान ते बैठा हुंदा, उस दुकान नूं गुरु नानक पातशाह ने पहाड़ा किया होया। जत दा मतलब हुंदा है अपनियां इन्हां 5 इंद्रियां नूं विकारां वल्लों रोक लैना। किवें? चंगा सोचना, चंगा देखना, चंगा सुनना, चंगा सूंघना, चंगा स्पर्श करना, ये जत है। पातशाह कहन लगे इस तो वड्डा होर कोई जत नहीं हो सकता। अपनियां इंद्रियां नूं तू रोक लै, समझ लै ये तू दुकान है, सुनियारे दी दुकान है। सुनियारे दी दुकान का मतलब कि तू अपनियां इंद्रियां नूं विकारां वल्लों रोक लिया। बाबा कबीर जी ने एक शब्द किया, बिंद राख जो तरिए भाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜੱਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੱਤ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਦਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਿਆਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ਼। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ। ਸੇਖ ਸ਼ੈਦਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰੁਕ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਖੂਏ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਸੁਨਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਧੀਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਧੀਰਜ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਅੱਗੇ 100 ਕਦਮ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਹਰਨ ਮਤ। ਅਹਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਨੇ, ਮੋਚੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਤਰੋਂ ਹਥੌੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ
बड़े सौखे तरीके दे नाल। सुनियारे तो शायद हो सकता है कईयां ने ना देखा होवे, ना पता होवे, तो सौखा करके समझाते हैं। जिवें मोची दे अगे एक लोहे का पिया हुंदा हथियार जिहा, जिहदे ते वो जुत्ती रख के किल रख के उपरों ठोकर मारदा है, इदां कह लो भी वो अहरन। पातशाह कहन लगे तू अपनी मत नूं सोचण शक्ति नूं अहरन बना। अहरन किहड़ा अहरन? जिहड़ा सुनियारे दे अगे पिया हुंदा, जिथे सुनियारा किसी रख के सोने नूं उपरों चोट मारदा हथियार दे नाल। अपनी जिंदगी दे अंदर तू मत नूं सोचण शक्ति नूं विचार शक्ति नूं अहरन बना। अहरन वेद हथियार। हुण ध्यान नाल देखियो शब्द नूं। वेद जिहड़ा शब्द है, दद्दे दे थल्ले औंकड़ लगी हुई है। जिहड़ी दद्दे दे थल्ले औंकड़ है ये एक वचन है। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ वेद ने, वेद चार ने, जे वेद चार ने ये बहुवचन बनेगा, पर दद्दे दे थल्ले औंकड़ इत्थे एक वचन है। हुण इत्थे किहड़े वेदां दी गल हो रही? वेद दा मतलब है ज्ञान। इत्थे वेद दा मतलब है ज्ञान। अहरन मत, अहरन जिहड़ी हैगी है जिहदे ते लोहा रख के चोट मर जाती है, वो तेरी मत तेरी सोचण शक्ति अहरन होवे। वेद हथियार, इहदे ते फिर हथियार होवे ज्ञान दा, ज्ञान दा हथियार होवे। दुबारा फिर बेनती करदा, जत पहारा, इंद्रियां नूं काबू दे विच रखना, ये तेरी दुकान होवे सुनियारे दी। जिहड़ा धीरज है, धीरज तेरा सुनियारा होवे। अहरन तेरी सोच शक्ति विचार शक्ति तेरी अहरन होवे। ज्ञान का हथौड़ा उत्ते मारिया जावे। मैं एक बेनती करदे हां, जिथे तुहानूं समझ ना आवे तुसीं विचकार दोबारा फिर पुछ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा वां ते डिस्टर्ब नहीं करना। जिथे तुहानूं समझ ना आवे, किसी शब्द ही समझ ना आवे, तुसीं विचकार उस तरह मैनूं पुछ सकते हो भी इत्थे सानूं समझ नहीं आई। साडी ये गुरमत की एक क्लास भी, गुरबाणी बहुता रट्टे मारन का पढ़न का विषय नहीं है। कई गुरबाणी पढ़ते हैं पर वो विचारन वास्ते तैयार नहीं। क्यों? विचारन दे नाल साडे अंदर की गल होनी है, वो सानूं बर्दाश्त नहीं है। गुरु पातशाह तुसीं की कह रहे हो, सानूं कोई मतलब नहीं, असीं पढ़ देने आ, पढ़ी जा रहे हैं। 550 साल की उपक्ष के अंदर एक माता ने 550 जपजी साहब के पाठ किए। वो अरदास करने वास्ते आई, लिफाफा उन्हें नाल लिया, अरदास का लिफाफा उन्हें अरदास का नाल लिया, प्रसाद लिया, बड़ी खुशी के नाल आई कि 550 पाठ किए जपजी साहब के। कह लगी भाई साहब अरदास कर दो, फरीदाबाद की गल है, भाई साहब अरदास कर दो, 550 पाठ किए जपजी साहब के, गुरु नानक पातशाह के 550 प्रकाश पुरब से। मैं क्या माता कितना टाइम लग गया? उन्हें पता नहीं किन्ने घंटे किन्ने दिन दसे। मैं क्या माता गुस्सा की माफ करी, ये ना सोची कि मैनू गुरु नानक मेरे बड़े खुश होणगे, ये ना किते सोच ली। कहती क्यों? मैं क्या किते एक जपजी साहब किते विचार लेंदी ना माता, इन्ने समय विच इन्ना समा नहीं सी लगना ते गुरु नानक पातशाह ने खुश हो जाना सी। जिहड़े 550 तू पाठ कीते ने, इहदे विच तू खुश हो जाएगी, मैं अरदास करनी मैं खुश हो जाऊंगा। माता ने लिफाफा जेब विच पा लिया, अरदास भी नहीं कराई। सच कहोगे, जे सच दी विचार किसी नूं समझाउण दी गल करोगे, हर बंदा नाराज हो जाएगा। जे झूठियां तसलियां दई जाओगे, अज इदां ही हो रहा, झूठियां तसलियां असीं दे रहे हैं। नहीं जी, बड़े सचखंड वासी स्वर्गवासी, धक्के नाल ही एवें ही, पता सानूं भी कुछ नहीं भी सचखंड गया है बंदा, नहीं गया, बस करता सचखंड। गुरु पातशाह कहन लगे विचार की गल है, पहला विचार कर, तेनू पता लग जाए, तेनू समझाया की है, तेनू समझ आ जाए। सुखमनी साहब ना पढ़िए कोई गल नहीं, एक सलोक नू विचार लिए सब तो वड्डी गल है। बेशक असीं पूरा संपूर्ण धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की बंद बाणी ना पढ़िए, जपजी साहब पढ़ के विचार लिए साढ़े वास्ते बहुत है, क्योंकि सारे जपजी साहब
जिन्हें संपूर्ण जपजी साहब नूं विचार लिया, इदां समझ लो ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की बाणी विचार ली उस बंदे ने, जिन्हें जपजी साहब नूं विचार के पढ़ लिया। सदियां बीत गईयां ने, युग बीत गए ने, जिंदगी सारी निकल गई है, सानू कोई पुछ लवे किसी एक पौड़ी की विचार पता ही है नहीं सानू, फिर पढ़ते की हाँ। जे बच्चा केवल पढ़ी जाए, मैथ पढ़ी जाए, मैथ उन्होंने हल करन दा पता नहीं लगे, कभी वो पास नहीं हो सकता, माफ़ कर दिया जी। बच्चा साइंस पढ़ी जाए, काली पढ़ी जाए, जे पढ़ के उन्होंने विचारे ना, समझ विच सोच मंडल विच लैके ना आवे, कभी पास नहीं हो सकता। यही गल है, असीं अज फेल हो गए हैं गुरबाणी के विषय से, क्योंकि विचारी नहीं ना समझी। हुण गुरु पातशाह कहने जत पहारा धीरज सुनिया, तू इंद्रियां नूं रोक लै, काबू विच कर ले, ये सुनियारे दी दुकान है। अपने धीरज नूं सुनियारा बना लै, अपनी सोच शक्ति नूं, विचार शक्ति नूं अहरन बना लै, ते ज्ञान नूं हथियार बना लै। ज्ञान नूं हथियार, ज्ञान नूं हथियार। जदों ज्ञान तेरा हथियार होएगा, हथियार ज्ञान दा वजेगा, तेरा मन परमात्मा दा रूप हो जाएगा। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ते अगे साहब फरमान करदे ने, भौ खला पुरानी कुठाली, जिहदे अंदर जदों सोने ढालना होंदा ना, तो वह कुठाली विच पांदा लोहा, जिथे कोले पाए जाते हैं, जिन्होंने भट्ठी नूं गर्म किया जाता है, उन्होंने भौ, उन्होंने खला कहा जाता है। साहब कहन लगे भौ का मतलब होंदा डर, जिन्हों आपां अदब कह देने, अदब। भौ की कुठाली होवे तेरे कोल, भौ की कुठाली, जे तेरे कोल भौ की कुठाली नहीं है, भै बिन भगत न होवे, नाम न लगो प्यार। सह फरमान का निर्मल भौ पाया, हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे। जिन्होंने परमात्मा के गुण गाए ने, निर्मल भौ पाया, उन्होंने पवित्र भौ नूं पा लिया। जगत का भौ मैला भौ है, परमात्मा का भौ स्वच्छ ते निर्मल भौ है। जिहड़ा परमात्मा दे भौ दे विच रहेगा, परमात्मा दे डर दे विच रहेगा, निरभौ जपै सगल भौ मिटे, उन्होंने संसार का डर नहीं रहेगा। एक मैं बेनती कर दिया, जिन्ने भी कानून हिंदुस्तान या आल वर्ल्ड के अंदर जिन्ने कानून बने ने, जिन्नी पुलिस बनी है, आर्मी बनी है, जेलां बनिया ने, अदालतां बनिया ने, वकील बने ने, जज बने ने, किसी की लोड़ नहीं पैगी जे बंदे दे अंदर परमात्मा का भौ पैदा हो जाए। जिस दिन बंदे दे अंदर परमात्मा का भौ पैदा हो गया, उस दिन इस धरती ते ना जेल खाने रहणगे, इस धरती ते ना कोर्ट रहणगे, इस धरती ते ना जज ते वकील रहणगे, इस धरती ते ना तोपखाने रहणगे, इस धरती ते ना हथियार रहणगे, लोड़ ही नहीं पैनी। क्योंकि बंदे की जदों मत, बंदे की सोच परमात्मा के भौ दे अंदर चलेगी, परमात्मा ने ऐसी बख्शिश की, बंदा किसी का हक मारेगा नहीं, अपने हक ते ईमान रखेगा। जदों उन्होंने पता लग जाए को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा, कि सारिया तू वड्डा राजा परमात्मा है, मालक है। जदों उहदे अंदर संसार उहदे भौ दे विच चलेगा, जिहड़े माड़े कर्म हो रहे ने, कुकर्म हो रहे ने, ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे। साहब कहने लगे निर्मल भौ पाया, हर गुण गाया, वेखे राम हदूरे। गुरु रामदास पातशाह फरमान करते हैं। हुण गुरु नानक पातशाह कह रहे ने, भौ खला तू कुठाली नूं भौ बना ले, भै बना ले। अगन तपताओ, हुण अग केड़ी है? तप दी अगन। सवेरे उठ के नितनेम कर रहे हैं, ये तेरी तप दी अगन है। सिमरन कर रहे हैं, ये तेरे तप दी अगन है। लंगर की सेवा कर रहे हैं, लंगर वरता रहे हैं, तेरे तप की अगन है। तू भांडे मांज रहा है, ये तेरे तप की अगन है।
ਤੂੰ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਪ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਪ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਪ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਤਪ ਦੀ ਅਗਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਉ ਖੱਲਾ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਧੋਕਰੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਧੋਕੜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਉ ਏ, ਉਹ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਤਪ ਦੀ ਅਗਨ ਹੋਵੇ। ਨਿਤਨੇਮ, ਸਿਮਰਨ, ਬੰਦਗੀ, ਭਜਨ, ਸੇਵਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਪ ਦੀ ਅਗਨ ਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤਪ ਦੀ ਅਗਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਜਾਰੀ ਅਗਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਸਰਥਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨ, ਤਪ ਦੀ ਅਗਨ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਗਨ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਗਨ ਹੋਵੇ। ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਗਹਿਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਉ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੈ, ਡਰ। ਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਉ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਉ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੜੀਵਾਰ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਢਲਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਉ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ। ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਨ ਦੀ ਏ। ਇਸ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਤ ਤੇ ਸਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਢਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਧੀਰਜ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਢਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਰਨ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਢਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਢਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ। ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
शब्द के इशारियां का पता लगता है, शब्द की बोली का पता लगता है। सानू मालक के इशारियां दे, अख के इशारियां का पता नहीं लगता। कई बार बहुत गहरियां गल्लां भी अख तो बंदा पहचान जाता है, पर साडे कोल इन्नी अजे दूर दृष्टि नहीं, असी अपने मालिक दियां निगाह ओदियां अखां नूं पहचान सकीए। साहब कह लगे, जिस दिन तू मालिक दी मेहर दी नदर दे थले आ गया, फिर नानक नदरी नदर निहाल, तू नदरी नदर निहाल हो जावेगा, इना निहाल हो जावेगा फिर तिसों किसी नूं बयान नहीं कर सकता इस जुबान दे नाल। तू किसी नूं दस नहीं सकता इस जुबान दे नाल मालिक ने किन्नी बख्शिश, किन्नी रहमत, किन्नी मेहर दी नदर कीती है। ते साहब फरमान करदे ने, जिस जगह ते भाओ है उस जगह ते परमात्मा की बख्शिश है, उत्थे मालिक की रहमत है। जिहड़ा बंदा भाव दे अंदर टिकिया, साहब कहन लगे, सचखंड वसै निरंकार। धन गुरु नानक देव जी महाराज जदों वेई नदी दे विचों 3 दिनां बाद प्रगट होए शमशान घाट विच, जिहड़ी उन्हां नूं अलहाम होया, आकाशबाणी होई, बख्शिश होई, वो जपजी साहब है। वो पावन जपजी साहब की बाणी जिहड़ी मेरे मालिक ने बख्शिश की, रहमत की। धन गुरु अमरदास जी महाराज सच्चे पातशाह कहने, जिस बंदे नूं जपजी साहब कंठ होवे, उस बंदे नूं दुख ते कलेश नहीं वापरदे। जिस बंदे नूं जपजी साहब कंठ होवे, उस बंदे दे लागे भूत ते प्रेत नहीं जांदे। ते पावन रहत नामिया दे अंदर साहब कहन लगे, जिहड़ा बंदा जपजी साहब पढ़न तो बगैर खांदा ते पींदा है, वो सिख मरण तो बाद भ्रष्ट जूनी दे अंदर जाता है। रहतनामे कह रहे हैं, ये रहतनामे कह रहे हैं गुरु पातशाह। कहन लगे, जपजी साहब की इन्नी महानता, जिहड़ा बंदा जपजी साहब पढ़ लेंदा, जपजी साहिब, जपजी पढ़ेगा तो साहिब तक तू चला जाएगा, साहिब तक तेरा मेल हो जाएगा। इतिहास पढ़ते हैं, वो भी समा आया सी जदों सिखां ते इन्नी पाबंदी हुंदी सी भी सिख गुरुद्वारे नहीं जा सकता। जंगलों के अंदर सिख रह रहे हैं, गुरबाणी पढ़ने वास्ते कोई प्रबंध नहीं है। पर तुसीं हिसाब ला लो भी एक जपजी साहब पढ़ पढ़ के अगले ब्रह्म ज्ञानता तक पहुँच जाते सन। एक जपजी साहब, एक जपजी साहब पढ़ के अगले संत ते भगत बन जाते सन। एक जपजी साहब पढ़ के ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लेंदे सन जदों इन्ना प्रबंध नहीं सी हुंदा। सिखां दे वास्ते बहुत ज़्यादा जदों मुसीबत दीयां घड़ियां आईयां, तुसीं अज भी इतिहास पढ़दे हो, भाई मती दास नूं जदों आरे नाल चीरिया गया, चीरन तो बाद 2 फाड़ हो गए ने, पर श्लोक फिर भी चल रहा है। इहदा मतलब जपजी साहब ही उन्हां दा जीवन बनिया होया, जपजी साहब ही उन्हां दा आत्मक जीवन की खुराक बनी हुई है। इस करके गुरु पातशाह कह रहे हैं, जिहड़े जपजी साहब आपने पढ़ते ते सुनते ते विचारते ने, मानो वो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था तक पहुँच जाते हैं। गुरु पातशाह कृपा करन। इसी पावन जपजी साहब की 38 पौड़ी, जिहदे अंदर मेरे मालक गुरु नानक पातशाह समझा रहे ने, तू अपनी मत नूं, अपने मन नूं किवें घड़ना है ते घड़ के उस मालक तक किवें पहुँचना है। इस तो अगली विचार श्लोक जो सोमवार नूं श्लोकां की विचार की जाएगी। श्लोक तो बाद फिर पावन आसा जी की वार, जो अज की रहत मर्यादा है, आसा की वार। आपां केवल श्लोक ते पौड़ियां नहीं, उहदे शंत भी उचारने ने। शंत गुरु रामदास पातशाह दे ने, श्लोक गुरु नानक पातशाह, गुरु अंगद देव पातशाह दे ने, पौड़ियां गुरु नानक पातशाह दियां ने। जिहड़ी गल शंतां दे अंदर गुरु रामदास पातशाह कह रहे हैं, उही गल श्लोकां विच हो रही है, उही गल पौड़ियां विच हो रही है। गुरु पातशाह रहमत बख्शिश ते कृपा करन। आपां कल्ली कल्ली विचार समझते समझ सूझ के विचारीए, ताकि सानू पता लग सके गुरु पातशाह सानू की समझाना चाह रहे हैं, और जिहड़ी गल गुरु पातशाह ने सानू समझाना चाह रहे हैं, उस गल नूं समझ के उस मालक तक पहुँचण की असीं भी कोशिश करिए। बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां दी खेमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया।
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਕਰਸ਼ਾਂ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਵਸਿਆ ਜਨੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਾਸੋ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਡਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਾ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇਕਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰੀਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈਨ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੀ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਉ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਕਰਨੋਂ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਨੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤਿ ਆਵੇ ਜਿਤਿ ਆਵਤ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਬੈਜ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਨਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਗਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਅਕਾਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਕਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣੀ ਮਾਂ ਮਾਤੂ ਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ।
हे निमाणिया देवा निताणिया दे तान ड्यूटियां दियो। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जीओ। आप जी दे हजूर अरदास बेनती है धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज। आप जी दे ज्योति जोत प्रभ नूं मुख रखदे होया धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। आप जी दे गुरता गुरगति दिवस नूं मुख रखदे होया धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जीओ। आप जी के प्रकाश पुरब की खुशी मुख रखते हैं आप जी के हजूर अमृत वेले तो दीवान सजाए गए ने। सजे दीवाना दे दरासा जी की वार दे मनोहर कीर्तन शब्द कीर्तन गुरमत विचारा 6 पौड़ियां अनंद साहिब जी के जाप होए ने। बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां खेमा कर देनियां। दाराई संगत की हाजरी दर प्रवान करनी कदम कदम लेखे भी चलाने। तिल फुल भेटावा दर प्रवान करनिया नाम दी दात गुरसिੱਖੀ वाला जीवन चरना कमलों की प्रीति बख्शनी। घर दे अंदर सुख शांति वरतौनी जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। जित द्वारे बरै तिते लिहो बार समुचे संसार के अंदर चल रही। कोरोना वायरस की महामारी तो कृपा करके समुचे संसार में निजात बख्शनी। आप जी दे दर घर दे प्रीतमान काका सही सिंह बच्ची रसनीत कौर बच्चियां दी सुख शांति दी अरदास बेनती सच्चे पातशाह कृपालता बनी। बच्चियां दी अरदासां बेनतियां दर प्रवान करनियां हर प्रकार रखिया सहायता करनी। देसां विदेसां अंदर सहाय होना सच्चे पातशाह जीओ। आप जी दे दर घर दे प्रीतमान सरदार अमरजीत सिंह जी वल्लों कड़ा प्रसादी सेवा हुई कृपालता करनी। परिवार दी अरदासां बेनतियां दर प्रवान करनियां कृपालता करनी बख्शिश करनी। प्रेमी परिवार वल्लों कड़ा प्रसाद की सेवा हुई। आप जी के दर घर दे प्रीतमान सरदार इंद्रजीत सिंह जी वल्लों शुकराने वजों अरदास बेनती सेवा परिवार वल्लों 1100 रुपया मेडिकल सेंटर वास्ते मुकम्मल कड़ा प्रसाद की सेवा हुई कृपालता करनी। परिवार को खुशियां ते किड़े बख्शिश करने चढ़ती कला वाला जीवन हर प्रकार रखिया सहायता करनी। अमृत वेले का जागना नितनेम दी दातां बख्शिश करनियां। आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद की देख हाजिर है दर परवान होवे। परवान होया प्रसाद साध संगत रताउंदी आज्ञा होवे जी करो कृपालता। आप जी अपना टल इलाही हुक्मनामा बख्शो तिसे चलना दी समर्था बख्शो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे काज रास बंदे से प्यारे मेलो। जिन्ना मिलिया आप जी दा ही नाम जिते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भैया काल की सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिल गोच है। राज करेगा खालसा वार हुए सब मिलेंगे। बोले खालसा वाहिगुरु जी की फतेह को। Gloria al Sol.
डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दे कटिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। टोटी महला पंजवा। हर हर चरण हृदय उरतारे, सिमर स्वामी सतगुरु अपना, कारज सफल हमारे। हर हर चरण हृदय उरतारे, सिमर स्वामी सतगुरु अपना, कारज सफल हमारे। रहा पुण्य दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तत् विचारे। गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे। जो जन पाल ब्रह्म अपने कीने, तिनका बहुर कछ ना विचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नाम कंठ मझारे। जो जन पाल ब्रह्म अपने कीने, तिनका बहुर कछ ना विचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मझारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन टोडी राग के अंदर गुरु अर्जन देव पातशाह फरमान करते हैं, हर हर चरण हृदय उरतारे, सिमर स्वामी सतगुरु अपना, कार्य सफल हमारे। पुण्य दान पूजा परमेश्वर, हर किरत तत् विचारे। गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे। पावन गुरु शब्द के अंदर गुरु अर्जन देव पातशाह करने उस परमात्मा के नाम को सिमर और हिरदे के अंदर वसा। जे परमात्मा के नाम को हिरदे के अंदर वसा रहे हैं, गुरबाणी पढ़ रहे हैं, विचार रहे हैं, यही तेरे वास्ते सब तो बड़ी पूजा है, यही तेरे वास्ते सब तो बड़ा दान है, यही तेरे वास्ते दुनिया के सब तो बड़े पुण्य ने जो किए हुए। जे उस मालक के विचार को हिरदे के अंदर टिका रहे हैं, समझ के सोच के विचार कर रहे हैं। साहब कह लगे फिर जिन्होंने मेरे मालक ने अपना बना लिया, जिहड़े परमात्मा के बन गए मालक, फिर उन्होंने कोलों लेके ते जो कि बार बार नहीं करते। गुरु पातशाह कृपा करन। 15 अप्रैल 1469 जो गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब होंदा है। ये गल वक्री भी अज के समय दे विच गुरु पातशाह के शहीदी दिहाड़े तो लैके प्रकाश पुरब जिन्ने भी उन्हों दी डेटा तरीका चेंज हो रही हैं, पर जो सही रियल डेट है धन गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब की वो 15 अप्रैल 1469 को धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह का प्रकाश पुरब होया। सो आप समूह संगत को गुरु पातशाह के प्रकाश पुरब दियां लख लख बधाइयां। नाल ही धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज जिन्हों का अज गुरता गुरगद्दी दिवस है। सो आप समूह संगत को गुरु पातशाह जी के गुरता गुरगद्दी दिवस दी लख लख बधाइयां। गुरु पातशाह कृपा करन। नाल ही ज्योति जोत पुरब धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज, तो गुरु पातशाह कृपा करन। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मालक अपने चरणों के नाल जोड़ के रखन, खुशियां ते खिड़ी चढ़ती कला वाला जीवन बख्शण। होइयां बेद प्रकार दीयां भुलां गलतियां दी खेमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह।